Yes, good morning to all. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. So, Kashish, you are back after a number of days. Yes, sir. क्या हो गया था? सर वो घर पे डेथ हो गई थी इसलिए. अच्छा, sorry for that. So today we will focus on the another descriptive stat methods. Yesterday I have shared a information in the group that you can basically attempt for there is a sort of a workshop on Python, and you can start making and go for developing a app based on Python. So for that, no prior Python experience is needed for that. So I think that everyone should avail the benefit of that activity. So we will wait for a couple of minutes for others to join in. Yes, yes, कैमरा कर लो बेटा ऑन. मन्नत शर्मा, श्रिया. या श्रिया पढ़ा था वो जो मैंने सेंड किया था ग्रुप में, जो इन्फॉर्मेशन सेंड की थी? Yes, sir. ठीक है, तो रजिस्टर किया उसके लिए? Yes, sir. चलो ठीक है. So everyone will be doing that exercise. कौन सा स्लॉट किया आपने उसमें सिलेक्ट? Sir, April 25 from 12 p.m. to 2 p.m. Okay. So Mannat is also back after a break. ठीक है, इन सिलेबस को कवर करते रहना साथ साथ में, that whenever you are taking a break like that. Yes, थोड़ा सा करना श्रिया, इसको रिपीट करना, what we have basically described yesterday about the descriptive stat. The descriptive statistics means, first of all, we have discussed about what is statistics. It deals with the collecting and arranging of data that can be easily understood by anyone. Then we have done certain methods like mean method that is used to find the mean of the numbers or the data. Then maximum function that takes out the maximum number or the maximum data from rows or columns respectively. Similar is the minimum function. Yes. So then we also focused. We'll focus on that count and sum function also. So descriptive stat is, as the name is given here, it is part of statistic, and statistic is one of the branch of mathematics. So its main purpose is that we are going to apply the different operations on the data, so that we can understand whatever the data we have. So what are the features of that very data? So that is for understanding the data that we have, we make use of descriptive stat. And now this is very important tool for research. Whenever you go for research, the knowledge of descriptive stat is basically must. So no, whether his person is from the medical background or from the engineering background, any sort of background he has, whenever he goes for research, so he needs the knowledge of descriptive stat. So moving forward, so as elaborated by Shriya, max function is to find out the maximum value. इसके अंदर जो important चीज ये है कि इसमें x is equal to 1 जो है वो रो के लिए है, x is equal to 0 is for column. So जब हमने ड्रॉप मेथड किया था तो उसमें x is equal to 0
was for rows and axis is equal to 1 was for column. तो ये फिक्स नहीं है, that will matter from function to function. डिस्क्रिप्टिव स्टैट के जितने भी फंक्शंस हैं उनमें axis is equal to 1 represents the rows and axis is equal to 0 represents the column. So then we took the yesterday data of this 3 companies and their 4 quarter results and then applied first with the max function. यहाँ पे जो max है उसको that we have applied it column wise and then is we have applied the max on the whole of the data frame and where axis is equal to 0 means that it is going to give the column wise result. और अगर यहाँ में axis is equal to 1 करता हूँ तो फिर मेरे पास ये क्वार्टरली रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा रो वाइज. So similarly we have minimum function. So then we have a count. So count is it returns the number of values present in a column of a data frame or a series. So when we are going to count the number of values, this is similar to exactly similar to the MySQL count is that is also responsible for counting the values. And then we move to this mean function. So in mean function, clear, as you know that it is used to calculate the average. Clear, so we can calculate the average of a column and we can apply the same method on the rows also. So the method here is mean and we can mention a specific column also and we can apply the axis wise also. And yesterday we have applied, like let's say we want the Wipro company's average turnover, quarterly average turnover. So what was their average turnover for each quarter is this is 2650. And if we want to apply the same operation column wise, sorry, row wise, so we can work it like this, where we mention that axis is equal to 1. So this is how we apply this method row wise. Then we have sum function. So how the sum function is different from the count function. So who will elaborate? Yes, I again make a request. Romika Sharma, Kashish, Navdeep Singh, Harshit, Jasleen. Yes, yes, Harshit, आप बताओ, what is the difference between the sum method and the count method? सर जो काउंट मेथड होता है उससे हम जैसे रो वाइज या कॉलम वाइज डेटा को काउंट करके एक पर्टिकुलर मतलब नंबर में आंसर निकाल सकते हैं और जो सम मेथड होता है उससे हम सारी रोज या कॉलम्स को ऐड करके सर उसके डाटा का सम निकाल सकते हैं एक Yes, yes, yes. So count is for counting the number of values and sum is to basically whatever the magnitude of those values is there to find out the sum of those values. So exactly the same as we have in Excel also. Now we go with the median. Clear? So now in descriptive stat we are going to focus on all the statistical functions and I think that you are familiar with the stat also. So median is, it is used to return the middle value. So middle, this median is responsible for finding out the middle value among the data. So median of a data frame, median of a column, median of rows. So these 3 functions we can apply here. ठीक है? Column wise भी हम median को apply कर सकते हैं, row wise भी कर सकते हैं and column wise भी कर सकते हैं. So these are the methods we have. Now we move to the so this is the example that we have taken yesterday. Okay. Now let's say we want to apply this operation on a like you can first see the data frame. This is the data frame we have.
and let's say first of all we apply this median function to a particular column. एस नवदीप आप बताओ किस कॉलम के ऊपर हम अप्लाई करें मीडियन? किसी भी हाँ, एक कॉलम का नाम ले लो, नेम एनी TCS TCS. So let's say data frame dot not dot, we'll be using specific column, that is TCS, and here we are going to apply this median. तो हमें बहुत ज्यादा इसके we don't need the formula for median, the Python will do it for ourselves. So this is the median value, clear? That is the median value in the TCS series, and if we want to look at the TCS सीरीज, पहले हम उसका डाटा भी डिस्प्ले करवा लेते हैं, ठीक है, और उसकी मीडियन वैल्यू ये बन रही है। अगर हमें इसकी मीन वैल्यू भी रिक्वायर्ड है, एवरेज वैल्यू, so you see average and average is different and median is different, so these are the two different values that we get. Median represents the mid value of a series, ठीक है जी? So this is how we apply the median. ऐसे ही अगर हमने इसको we want to apply, this is how we have applied the operation on a specific column, and similarly we can apply clear. So this is the last we have applied the median column wise, ठीक है? और अगर हमने रो वाइज अप्लाई करना है तो क्या करना पड़ेगा इसके अंदर? दिस इज द रिजल्ट, जैसे हमने TCS आ गया, विप्रो आ गया, LNT आ गया, कॉलम वाइज रिजल्ट वी गॉट. इफ वी वांट टू अप्लाई दिस रो वाइज, यस हर्षित, so I think Harshit has moved away. Yes, Romika बता सकते हो? So then we will have to specify the axis equals to 1. Axis is equal to 1 is for row wise. Clear? So now you are finding out the result is coming quarterly, row wise. This is we are getting the result. Clear? तो इससे पहले अच्छा है कि आप एक बार जरूर ये अपने डाटा फ्रेम को जरूर पहले अपने सामने रख लिया करे, so that you get the idea कि हम किसके ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है? अगर हमें TCS, विप्रो, LNT की फॉर्म में रिजल्ट आ रहा है तो इट मींस द रिजल्ट इज कमिंग कॉलम वाइज. तो अगर हमें ये Q1 और Q2, Q3, 4 का ये जो हमारे पास मीडियन आ रहा है, so it means that the result is basically coming row wise, ठीक है? यस मन्नत, क्लियर है? यस सर। ठीक है, जैसे बेटा हमने ड्रॉप मेथड में यूज किया था एक्सिस इज इक्वल टू 0, सो एंड दैट वाज फॉर रोज एंड एक्सिस इज इक्वल टू 1 वाज फॉर कॉलम्स, बट हियर इट इज द रिवर्स केस. तो इस चीज का ध्यान रखना है इन डिस्क्रिप्टिव स्टैट. रेस्ट इज ऑलमोस्ट नाउ वी हैव अप्लाइड ऑल द मेथड्स. तो ऐसे पहले हमने मीन किया कैलकुलेट, देन वी हैव वर्कड अपॉन द मीडियन. ठीक है, now the next is the mode. All these are also called the measures of center tendency. Clear? Mean, median, mode जो हैं they falls under the measures of center tendency. So mode के बारे में कोई बता सकता है? What is the mode is the value? किसको बोलते हैं mode? Anyone?
mean median mode. So only one student is there. Anyone other than Shriya who wants to say what is the mode is? वो easy होते हैं mean median mode. Mean भी हमने calculate कर लिया, average value, and then we said the median is the middle value and mode is the which type of value is it is. सर मोस्ट रिपीटेड होती है हाँ जी, सर, जो वैल्यू बार बार रिपीट हो रही हो। हाँ जो बार बार रिपीट हो रही है। तो अगर बार बार मल्टीपल वैल्यूज रिपीट हो रही हो तो फिर किसको हम बोलेंगे विच इज द मोड वैल्यू? सर जो वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है वो होगी। यार मैं बोल रहा हूँ कि अगर तीन वैल्यूज बार बार रिपीट हो रही हैं तो उनमें से उन तीनों में से मोड वैल्यू कौन सी होगी? Yes, yes, Shriya will say on this. Yes. Some mode is the value which is mostly repeated, means that it has higher number of frequency. यस यस, तो अगर तीन वैल्यू बार बार रिपीट हो रही हैं तो उसमें से मैं चेक करूंगा कि उन तीनों में से कौन सी वैल्यू है जो मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो रही है। एंड यू नो जब आप मोड कैलकुलेट करते होगे तो कई बार क्या हो जाता है, दो वैल्यूज आ जाती है मोड की। क्लियर? बिकॉज वो क्या हो जाता है, हम दोनों वैल्यूज के अंदर मैचिंग आ जाती है कि ये वैल्यू भी इतनी बार रिपीट हो रही है, दूसरी वैल्यू भी उतनी बार ही रिपीट हो रही है। क्लियर? सो देन वी हैव a different mechanism of calculating the mode. So mode is the value, सिंपल सी बात है, मोड इज द वैल्यू विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। जो वैल्यू मैक्सिमम बार आएगी दैट वैल्यू इज द मोड वैल्यू। सो नेक्स्ट इज we just go through the definition of mode. Is it is used to return the mode. So the mode method will return the value of mode, that is the most repeated value of a given set of numbers, mode of a data frame, mode of a column, and mode of rows. So these are the three operations we can apply on a data frame. Either we can get the mode of the whole of the data frame, clear, or mode of a particular column or mode of particular rows. तो ये है कि अगर हम इसको स्पेसिफिक कॉलम के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट मैकेनिज्म इज। दूसरा मेथड है कि हम कॉलम वाइज अप्लाई कर रहे हैं, थर्ड इज दी रो वाइज अप्लाई कर रहे हैं। सो वी हैव दी सेम डाटा विद अस। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या है, पहले जो मोड है वो विप्रो के ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है। विप्रो के अंदर जो विप्रो का डाटा है उसके अंदर मोड क्या है, एंड देन इज द मोड ऑन दी कॉलम वाइज। ठीक है, टीसीएस में मोड कौन सी वैल्यू है और विप्रो में कौन सी है, एनएलटी में कौन सी है। एंड लेट्स से वी मूव विद तो नाउ वी हैव टू वर्क विद मोड, और एक हम इससे पहले कैलकुलेट कर देते हैं प्रिंट किसी पर्टिकुलर कॉलम के लिए। तो लेट अस से हमने पिछली बार कौन सा किया था, टीसीएस, एंड वी वर्क विद टीसीएस ऑन टीसीएस एंड डॉट मोड। ठीक है जी, तो ये हमारे पास रिजल्ट में क्या आ रहा है, सो थोड़ा सा इसको हम फर्स्ट वी आर गेटिंग, अभी हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट कौन सी है, सो टीसीएस के केस में ही इज गिविंग अप द 4 वैल्यूज, एंड देन इन केस ऑफ द रो वाइज उसने सभी वैल्यू को सिलेक्ट करके दिया हुआ है। सो वी शुड हैव दैट 1 वैल्यू इन द आंसर। So
जैसे इस आंसर के अंदर क्या है, सबसे पहले तो डाटा फ्रेम आउटपुट में आ गया, फिर हमारे पास क्या आ गया, दिस इज दी जो विप्रो में से है हमारे पास मोड वैल्यू, एंड देन इज दी कॉलम वाइज। तो हमने तो रो वाइज इसको अप्लाई किया है, एंड वी कैन गो विद दी कॉलम वाइज आल्सो। Axis is equal to 0, but we are getting the result in a sort of a tabular form. ठीक है, तो TCS में से भी उसने सभी वैल्यू को सिलेक्ट करके बोला, बिकॉज नो इस केस के अंदर क्या है हमारे पास, एक तो ये है कि हमारे पास जो वैल्यूज हैं दे आर नॉट रिपीटेड हियर। ठीक है, अगर हम वैसे अगर हम इस मोड को देखें, अगर हम मैन्युअली मोड को देखें, अगर 4 वैल्यूज हैं तो चारों वैल्यूज डिफरेंट है, सो इन दैट केस नो there is no value with sort of repetition is coming up। तो इसको थोड़ा सा अगर हम मैनिपुलेट करके देखें, तो अगर हम TCS के डाटा में 2 वैल्यूज रिपीटेड कर देते हैं, लेट अस से पहली लास्ट 4000 है और फर्स्ट को भी 4000 करते हैं। ठीक है, तो ये देखो TCS के केस में नाउ वी आर गेटिंग द मोड एज ए आंसर। ठीक है, इस स्टेप का पता चला किसी को, व्हाट चेंजेस आई हैव मेड? Yes, sir. यस रोमिका। So we have repeated one value instead of another one. देखो पहले क्या था, देखो मैं आपको पहले बताता हूँ, क्वेश्चन में वी मूव बैक टू द क्वेश्चन। ठीक है, पहले क्या था कि जो TCS का डाटा था, हमने ये लाइन नंबर 10 में ऑपरेशन लगाया था मोड निकालने के लिए ऑन TCS कॉलम। तो पहले क्या था, TCS की सभी वैल्यू डिफरेंट थी। जैसे पहले क्वार्टर में हम डाल देते हैं लेट्स से 2700, सेकंड क्वार्टर में 35, थर्ड क्वार्टर में 28 और फोर्थ क्वार्टर में 4000। जब हम इस कॉलम के ऊपर ये यहाँ पे ये जो TCS के ऊपर हमने मोड फंक्शन अप्लाई किया, जब हम इसको रन करेंगे तो सभी वैल्यू को वो मोड बोल रहा है। तो ही इज नॉट रॉन्ग बेसिकली, बिकॉज सभी की फ्रीक्वेंसी एक है, सभी वैल्यू एक ही बार रिपीट हो रही है। तो मोड क्या है, मोड इज बेसिकली ऑल दी 4 वैल्यूज। तो जब मैंने क्या किया, एक वैल्यू को रिपीटेड कर दिया, जैसे 4000 को 2 बार आ गई, अब 4000 फर्स्ट क्वार्टर में भी है, 4000 फोर्थ क्वार्टर में भी है, तो ये वैल्यू कितनी बार रिपीट होगी? 2 बार, बाकी सारी एक बार रिपीट हो रही है। व्हेन आई रन दिस वन, तो यू सी द मोड इज कमिंग हियर एज 4000 बिकॉज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वैल्यू इज 2, रेस्ट ऑल द वैल्यूज आर रिपीटेड सिंगल टाइम। ठीक है, तो इस वजह से आप जब भी मोड मेथड को अप्लाई करो, तो मोड मेथड की देखो हर चीज की हमें जब तक हमें कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, व्हाई आई एम्फसाइज ऑन दी कंसेप्ट आल्सो। अगर हमारा लेट्स से हमें कोडिंग बड़ी अच्छी तरह से आती है, लेकिन हमें कंसेप्ट ही नहीं पता कि मोड की कैलकुलेशन कैसे होती है, सो देन वी विल स्ट्रगल इन कैलकुलेटिंग द आंसर आल्सो। ठीक है, जब भी हमने किसी चीज का प्रोग्राम बनाना है, सो वी नीड द बैकग्राउंड आल्सो क्लियर कि मोड एक्चुअली कैलकुलेट कैसे होता है। So when you will find the a value is repeated, so then you will say that value is coming as a mode value। जैसे हम इसको अब हम इसी क्वेश्चन को अब हम इसको कमेंट कर देता हूं और इसको मैं कॉलम वाइज चलाता हूं। ठीक है, अब ये मेरे पास कॉलम वाइज मोड कैलकुलेट करने की कोशिश करेगा डाटा फ्रेम के ऊपर। सो व्हेन आई रन दिस वन, तो इसमें क्या आ रहा है, फर्स्ट में तो आ गया मोड, कौन सी वैल्यू है 4000, बाकी सभी में सभी वैल्यूज को उसने एक्टिवेट कर दिया। व्हाई ऑल दी वैल्यूज आर देयर इन दी आंसर? क्योंकि इनमें सभी वैल्यू मोड है, बिकॉज ऑल दी वैल्यूज आर मोड वैल्यूज, बिकॉज सभी की फ्रीक्वेंसी एक है। सिर्फ TCS वाले कॉलम में 4000 इज रिपीटेड 2 टाइम्स, दैट्स व्हाई ही इज सेइंग दैट 4000 इज द मोड इन TCS। बाकी सभी में सारी वैल्यूज मोड वैल्यूज ही। तो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द आंसर और नॉट? Yes, sir. यस, मन्नत शर्मा।
Yes, sir. ठीक है बेटा, यहाँ पे बहुत हम जल्दी यस बोल देते हैं, ठीक है, बाद में भी इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना है। यस अजय प्रताप, Yes, sir. Clear. ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन को मैं आपको मैकेनिज्म बता रहा हूँ, क्वेश्चन को करने का मैकेनिज्म ये है कि हमें कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मोड क्या है, जिसको मोड नहीं आता वो मोड फंक्शन को कभी समझ नहीं पाएगा कि मोड फंक्शन कैसे काम कर रहा है। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट इज दैट यू लुक एट व्हाट इज मोड इज। मोड इज द वैल्यू विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। टीसीएस वाले कॉलम में वैल्यू 2 बार रिपीट हो रही है, दैट्स व्हाई रेस्ट ऑफ द वैल्यूज आर रिपीटिंग हियर एज NaN, क्योंकि वो वाली वैल्यू मोड अब उसने मोड से उनको बाहर कर दिया है। सो ही इज सेइंग दैट रेस्ट ऑफ द वैल्यूज आर नॉट बेसिकली मोड, तो उसको उसने NaN से रिप्रेजेंट कर दिया। बट दिस इज नॉट हैपनिंग इन द विप्रो एंड LNT कॉलम, ठीक है जी। सो आई थिंक दैट्स enough discussion for mode, and we next switch over to another very important topic of stat is quartile। तो क्वार्टाइल के बारे में, क्वार्टाइल जैसे मीडियन होती है मिड वैल्यू, सो सिमिलरली क्वार्टाइल, कोई बता सकता है व्हाट इज क्वार्टाइल इज? सीरीज की मिड वैल्यू को हम बोलते हैं, पहले बताओ क्वार्टाइल पढ़ा है किसी ने, कभी आज तक सुना है क्वार्टाइल, या कभी स्टैट में से कैलकुलेट किया है क्वार्टाइल? फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल, मीडियन के साथ ही हम कैलकुलेट करते हैं क्वार्टाइल को। सुना हुआ है? तो पढ़ा है। पढ़ा है। सर, अब पढ़ा तो हाँ, मैं 3-4 बार बताऊंगा तब धीरे धीरे करके आप बोलोगे कि सर पढ़ा है। मैं आपको बता दिया, हिंट मैंने दे दिया कि जब हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं, मीडियन इज आल्सो ए क्वार्टाइल, इसको हम बोलते हैं सेकंड क्वार्टाइल को हम मीडियन बोलते हैं। एक होता है फर्स्ट क्वार्टाइल, मींस यू कैन से दी 1/4, देन जो नेक्स्ट 1/4 ऐड होके वो क्या बन जाता है, मीडियन बन जाता है। फिर हमारे पास थर्ड क्वार्टाइल आता है, एंड नो द फोर्थ क्वार्टाइल इज बेसिकली द एंडिंग ऑफ द सीरीज। तो थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको क्वार्टाइल का। क्वार्टाइल के अंदर आपको दैट इज नो इज बिट ऑन द डिफिकल्ट साइड। अब क्वार्टाइल में क्या है, दी वर्ड क्वार्टाइल इज टेकन फ्रॉम द वर्ड quantile, so the word quantile taken from quantity, so this is the background of these words is, let us understand by taking an example. So an example has been put over here. हाँ यस मन्नत, पढ़ना ये एग्जांपल को। With 0.35 quantile states that 35% of the observations in the dataset are below in a given line. It also states that there are 65% remaining observation are above the line. ठीक है, तो बेसिकली जब भी हम जैसे हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं ना, तो अगर मैंने इसी क्वेश्चन को, इसी स्टेटमेंट को मीडियन में कन्वर्ट करना हो तो मैं क्या बोलूंगा कि 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस आर बिलो द मीडियन वैल्यू एंड 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस आर अबव द मीडियन वैल्यू। यही काम होता है मीडियन का, टू बाइफरकेट ए गिवन डाटा सेट। सिमिलरली अब क्वांटाइल का बोल रहा है, इसमें हम बोल रहे हैं कि अगर हम 0.35 क्वांटाइल की बात कर रहे हैं, तो जो गिवन डाटा सेट है उसके 35% वैल्यूज उसके बिलो होंगी, और 100 में से अगर 35% बिलो हो गई तो बाकी बची हमारे पास 65%, तो 65% विल बी अबव दैट क्वांटाइल वैल्यू। तो ये पर्पस होता है हमारे पास, दैट इज व्हाट वी आर स्टेटिंग विद द क्वांटाइल। ठीक है, नाउ वी मूव टू दी चलो अब ये और आ गया, इसको मोर एलेबोरेशन हैज बीन डन ऑन दी। देखो ये सारे मैथमेटिक्स की एप्लीकेशन है, दिस इज नॉट बेसिकली वी आर स्टडिंग दी पाइथन। ये मीन, मीडियन, मोड, ये सम, मिनिमम, मैक्सिमम, ये पाइथन का काम नहीं है। पाइथन का काम है उसके ऊपर फार्मूला लगाया एंड गेव यू द रिजल्ट। सो फॉर दिस वी नीड टू बी द बैकग्राउंड, वी आर स्टडिंग, ये मैथमेटिक्स से निकल के आ रहे हैं। तो अब हम इसको और स्टडी कर रहे हैं। Suppose that we have a series of numbers from A to B, तो ये सीरीज गिवन सीरीज है, इसको उसने इलेबोरेट किया है। Then we divide the it by a mid से C, तो एक C पॉइंट हो गया जो इसको, जो गिवन सीरीज है इसको मिडल में से टू हाफ में डिवाइड कर रहा है इसको। Then again we divide the AC and CB, तो इन दोनों को हाफ हाफ कर दिया, तो हमारे पास कितने बन गए, 4 क्वार्टर बन गया अब हमारे पास। ए से लेके पहले
ए और सी का जो मिड पॉइंट है दिस मच, वो क्या बन गया 25%, फिर नेक्स्ट 25%, नेक्स्ट 25% एंड नेक्स्ट। तो ये हमारे पास क्या बन गए, 4 क्वार्टर बन गए। एक गिवन सीरीज के कितने क्वार्टर बन गए, 4। ये जो सी वाला पॉइंट है इसको हम बोलेंगे मीडियन, इस पॉइंट को बोलेंगे हम फर्स्ट क्वार्टाइल, और इस पॉइंट को बोलेंगे हम थर्ड क्वार्टाइल, और इस पॉइंट को बोलेंगे हम सेकंड क्वार्टाइल। सेकंड क्वार्टाइल इज नथिंग बट ए मीडियन वैल्यू। सेकंड क्वार्टाइल को मीडियन भी बोलेंगे और हम सेकंड क्वार्टाइल भी बोल सकते हैं उसको। नाउ लुक एट वन मोर। तो अब उसने उसको क्या कर दिया, क्वार्टर वाइज रिप्रेजेंट कर दिया डाटा। ठीक है जी। तो हर एक जो क्वार्टाइल है वो क्या करता है, डाटा को 1/4 में डिवाइड कर देता है। फर्स्ट क्वार्टाइल में आ जाएगी पहली 25% वैल्यूज ऑब्जर्वेशंस, सेकंड क्वार्टाइल में नेक्स्ट 25, Q3 में नेक्स्ट, और Q4 में नेक्स्ट। तो Q1 किसको रिप्रेजेंट करता है, 25th परसेंटाइल को, Q2 किसको रिप्रेजेंट करता है, 50th परसेंटाइल को, और Q3 किसको करता है, 70th परसेंटाइल। ठीक है। सो परसेंटाइल इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग दी परसेंटाइल। अगर हम बोलेंगे 100 परसेंटाइल मींस दैट कवर्स ऑल दी वैल्यूज। ठीक है। और ये देखो यहाँ पे भी ये भी लिखा है Q2 इज बेसिकली रिप्रेजेंट्स दी मीडियन। मीडियन हम मिड वैल्यू को ही बोलते हैं। तो ये क्वार्टाइल के ऊपर और एलाबोरेटेड आ गया हमारे पास ऐसा। सो नाउ दिस इज दी, नाउ मेथड इज गिवन कि हम क्वार्टाइल को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो लेट अस से वी आर गिवन विद द सीरीज। ये सीरीज की वैल्यू है 1 3 4 7 8 8 9। अरेंज द डाटा इन द असेंडिंग ऑर्डर। मीडियन हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले डाटा को क्या करते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो सेम मैकेनिज्म विल बी अप्लाइड टू क्वार्टाइल आल्सो। सो नेक्स्ट इज द स्टेप नंबर 2 इज काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। So in this series we have 7 observations we have। ठीक है जी। नेक्स्ट है फाइंड आउट द क्वार्टाइल। तो पहला क्वार्टाइल हमने इसके अंदर फाइंड आउट करना है, दैट इज द 25th परसेंट से 25.25, दैट इज द 25%, आल्सो कॉल्ड द 25th परसेंटाइल। तो इसको हम फर्स्ट क्वार्टाइल भी बोलते हैं और इसको हम 25th परसेंटाइल भी बोलते हैं। ठीक है जी। नाउ इसको कैलकुलेट कैसे करना है, इसको कैलकुलेट करने का हमारे पास फार्मूला आ गया, दैट इज वी विल अप्लाई दी राउंड फंक्शन, दैट इज 0.25 इंटू n+1। n क्या है हमारे पास, दिस इज 7 + 1 8, और ये सारी कैलकुलेशन होगी हमारे पास जो रिजल्ट है, सो यू विल गेट द रिजल्ट एज 2। तो फर्स्ट क्वार्टाइल की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 2.0। क्लियर। अब ये 2.0 का मतलब क्या होता है, 2.0 हमारे पास आती है, 2.0 इज दी बेसिकली दी सेकंड ऑब्जर्वेशन। सेकंड ऑब्जर्वेशन इन दी सीरीज। 2.0 का मतलब है यहां से जो हमारे पास वैल्यूज आएगी, हमने उस वैल्यू को क्या लेना है, उस वैल्यू की ऑब्जर्वेशन को हमने देखना है सीरीज में से। तो जो सेकंड ऑब्जर्वेशन है वो क्या है हमारे पास, 3। सो वी गेट 3 एज दी, so we get here 3 as the answer। तो 3 आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट क्वार्टाइल। तो ऐसे ही अगर हमने कैलकुलेट दी सेकंड क्वार्टाइल, तो सेकंड क्वार्टाइल करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या बन जाएगा, 0.5। ठीक है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 50% को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0.5 से। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 50th परसेंटाइल। तो इसके ऊपर इसको हमने फिर से उसी फार्मूला में डाला, 0.5 इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन +1। तो ये इसको कैलकुलेट करके हमारे पास 4 आंसर आएगा। तो 4 जैसे ये देख लो, ये बन जाएगा 7 + 1 8, 8 को हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो ये आंसर आ रहा है हमारे पास फोर्थ ऑब्जर्वेशन। हमने इसकी इंटीजर वैल्यू को पिक करना है, तो राउंड हमेशा हमें ऑटोमेटिकली ये राउंड फंक्शन कैसे काम करता है, yes, It will result in the nearest whole value। हाँ देखो इसका मतलब क्या होता है, राउंड, और इसका सेकंड पैरामीटर हम लेके चल रहे हैं 0, मींस मैं इसको राउंड कर रहा हूं
विदाउट एनी फ्रैक्शनल वैल्यू। आई डोंट नीड एनी फ्रैक्शनल वैल्यू बिकॉज मेरे को तो इंटीजर वैल्यू के साथ कंसर्न है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसको राउंड और साथ में इसका एक किस्म का इसको जीरो कर दिया, राउंड टू जीरो, मींस आई डोंट नीड एनी फ्रैक्शनल पार्ट इन माय आंसर। सो दैट्स व्हाई हाउ आई हैव अप्लाइड द राउंड फंक्शन लाइक दिस। तो मेरे पास ये फोर्थ ऑब्जर्वेशन आएगा और फोर्थ ऑब्जर्वेशन को आप सीरीज में से चेक कर सकते हैं 1 2 3 4। सो दिस 7 इज द सेकंड क्वार्टाइल और सेकंड क्वार्टाइल को मीडियन भी बोलते हैं। और आप देख लो ये बेसिकली मिड वैल्यू ही है सारी सीरीज की, 3 वैल्यूज इसके लेफ्ट में है और 3 वैल्यूज इसके राइट में है। सो दिस इज अ वेरी गुड मैकेनिज्म इज गिवन, दैट इज हाउ वी कैलकुलेट द क्वार्टाइल। ठीक है, एक बार इसको ये पीपीटी को अच्छी तरह से पढ़ लेना, क्वार्टाइल की कैलकुलेशन कैसे हो रही है। दिस इज नथिंग एल्स, इसमें हमने पाइथन का कुछ नहीं पढ़ रहा है, ये मैथ्स की क्लास चल रही है, स्टैट की क्लास चल रही है बेसिकली। तो प्लस टू के सिलेबस में मैथ में है स्टैट या नहीं? देखो अब किसी को नहीं पता, किसी ने सिलेबस नहीं देखा होगा अच्छी तरह से। No, sir. ये सिलेबस किसने अच्छी तरह से देखा है मैथ का? वो हैंड रेज करे, those who will with conviction will say that I have checked my syllabus. अब कोई बोलेगा ही नहीं। और प्लस वन में स्टैट है आपके सीबीएसई के सिलेबस में, प्लस वन में स्टैट है? यस अजय प्रताप? सर हैगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? सर मीन मोड हैगा पर क्वार्टाइल नहीं हैगा। और चलो छोड़ दो, क्वार्टाइल पढ़ लो, ठीक है। तो अगर किसी को क्वार्टाइल के बारे में पढ़ना पड़ेगा तो ये तो मेरे हिसाब से 95% ये प्रेजेंटेशन ही काफी है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू आंसर योर क्वेश्चन। बट स्टिल अगर आपने देखना है तो यू विल हैव टू गो थ्रू ए स्टैट बुक जिसके अंदर ये क्वार्टाइल के बारे में लिखा होगा। और नेट के अंदर आप पढ़ोगे तो यू विल फाइंड a lot of material about the quartile also. Yes, अभी तक क्लियर है मिस्टर यस अजय प्रताप? whatever we have gone through. यस सर क्लियर। ठीक है, तो ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, बट स्टिल अगर आपको कोई भी किसी भी पॉइंट पे हेजिटेशन है, आज के लेक्चर में हमने पाइथन के ऊपर फोकस नहीं कर रहे, वी आर फोकसिंग ऑन मैथमेटिकल कांसेप्ट्स। ठीक है, सो फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है, सो यू कैन कम आउट एंड डिस्कस दैट पर्टिकुलर डाउट इन दी नेक्स्ट क्लास। ठीक है, और दूसरा मैंने आप लोगों के ग्रुप में वो शेयर किया था, दैट इज दी रजिस्ट्रेशन फॉर दैट जो पाइथन बेस्ड ऐप है, दैट विल बी बेसिकली फेशियल रिकॉग्निशन के लिए ऐप विल बी क्रिएटेड इन ए वर्कशॉप। तो बाकी श्रिया बताएगी आपको उसके बारे में, दैट अबाउट दैट वर्कशॉप। So that workshop, it is basically for Guinness World Record also, and it will try its best to bring India in top 3 countries for AI. And that will be basically for today time slot of 6 p.m. to 8 p.m. But they have given different time slots. ठीक है, so you can register by looking at the उसके अंदर मैंने लिंक भी शेयर किया हुआ है, तो आप लोग ट्राई कर सकते हो। ठीक है, and that will give you the opportunity to use Python also. और ये इसकी जो प्री रिक्विजिट है ना, इसकी प्री रिक्विजिट उन्होंने बनाई हुई है कि जिसको पाइथन नहीं आती है, the person who doesn't know anything about Python, तो हमें तो थोड़ा बहुत आता है पाइथन के बारे में, so we will be in a much more comfortable. और जैसे आजकल a lot of focus is there on AI also, तो आपको AI के बारे में भी पता चलेगा that how AI is implemented using Python. ये हमें कभी सिलेबस से नहीं पता चलेगा कि सिलेबस में AI कहां पे मेंशन की हुई है। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट इज दैट दिस इज ए फ्री सॉर्ट ऑफ ए वर्कशॉप, कोई भी चार्ज नहीं है इसके लिए। सो रजिस्टर करो एंड ट्राई टू लर्न व्हाटएवर वी गेन थ्रू दिस वर्कशॉप। यस, कोई और किसी का कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग लेक्चर और कोई भी क्वेश्चन? हाँ जी सर, जैसे गूगल फॉर्म में हम जैसे फाइल्स अपलोड करते हैं ना प्रोजेक्ट टेस्ट के लिए, सर मेरे अपलोड ही नहीं हो रहे हैं लाइक। बेटा ऐसा कोई चक्कर नहीं है, फाइल अपलोड ये क्या होता है, कई बार हमारे पास ये तो आप बोल सकते हो कि आपके मोबाइल स्पेसिफिक कोई ऐसा केस हो सकता है, यू यूज ए डिफरेंट डिवाइस आल्सो।
किसी दूसरी डिवाइस से करके देख लो। ये इसका कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है, दिस इज सॉर्ट ऑफ ए हिट एंड ट्रायल सॉर्ट ऑफ ए मैकेनिज्म इज अवेलेबल। एक चीज जो है वो 10 मोबाइल से अपलोड हो रही है, 11वें से नहीं हो रही, सो दैट कैन बी द मेमोरी कंस्ट्रेंट कैन बी देयर, कि मेमोरी कम है हमारे पास, ठीक है। सो इसका कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है, सो यू कैन नॉट गिव ए फिक्स्ड आंसर। जो सिंपलेस्ट वे है मेरे हिसाब से कि हम डिवाइस को चेंज करके वही जो मैथमेटिक्स में हिट एंड ट्रायल मेथड है ना, वो लगा सकते हैं इस हिसाब से। और किसी को कोई आंसर पता है इसके बारे में, या समवन वांट्स टू शेयर कि किसी मोबाइल से ऐसा होता है एंड स्टूडेंट फेस दिस प्रॉब्लम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेस दिस प्रॉब्लम, नॉट ओनली मनत शर्मा इज फेसिंग, क्लियर? तो किसी के पास कोई सोल्यूशन है, यू कैन शेयर। fast scanner app only. हाँ जी, I use fast scanner app that was recommended by the school. iOS सर गूगल ड्राइव में जो भी फाइल्स अपलोड करनी होती है, मैं फास्ट स्कैनर ऐप से स्कैन करके उसको डायरेक्टली अपलोड कर लेती हूँ, वो हो जाता है। चलो वो तो है, मैं ऐसे नहीं करता हूँ, मैं इसके बिना ही करता हूँ जैसे मनत शर्मा करती है, बट मेरी फाइल अपलोड हो जाती है। मैं वही बोल रहा हूँ, एक चीज को करने के डिफरेंट मैकेनिज्म है, बट दीज प्रॉब्लम्स डू अकर। और इसमें आपके पास कोई एक ही सोल्यूशन मैं बोल रहा हूँ, डिवाइस चेंज कर सकते हैं, मेमोरी कंस्ट्रेंट कैन बी देयर, नंबर ऑफ रीजंस। एक प्रॉब्लम का एक रीजन नहीं है कि इस प्रॉब्लम के कारण नहीं अपलोड हो रहा, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप कन्वे कर दो, आप अपने टीचर को बोल दो कि सर नहीं हो रही, you send the snapshot and you can उसको आप WhatsApp के थ्रू आप सेंड कर सकते हैं। तो जैसे वो सिलेक्ट ही नहीं होती, लाइक मैं क्लिक करूँ सिलेक्ट ही नहीं होती है फाइल, वो प्रॉब्लम है। फाइल सिलेक्ट नहीं होती तो वो डेफिनेटली वो डिवाइस स्पेसिफिक ही प्रॉब्लम है, वो फाइल सिलेक्ट नहीं हो रही। तो आप कोई और कोई टेस्ट देख, सभी टेस्ट में आती है ये सेम डिफिकल्टी? तो पहले तो लाइक इंग्लिश वाला टेस्ट दिया था, तब में तो एक बार हुआ था, फिर से मैं सोचा अगली बार हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम भी नहीं हुआ, व्हाट्सएप पे ही भेजा दोनों। अच्छा, I तो was आप facing this problem in the initial days. It हाँ, was due to network problem. हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो सकती है, बट ये नहीं हो सकता कि हर बार नेटवर्क प्रॉब्लम होती है। आई एम सेइंग दैट आप डिवाइस चेंज करके देखना, जब भी टेस्ट होगा ना तो आप मोबाइल चेंज कर लेना, एक्सचेंज कर लेना पापा के साथ थोड़ी देर की, ये मोबाइल आप रख लो थोड़ी देर, सिर्फ टेस्ट के लिए मेरे को मोबाइल चाहिए, ठीक है? लैपटॉप है आपके पास? लैपटॉप? यस सर। तो लैपटॉप से ट्राई किया? सर बट ये ना कि क्लिक करके फोटो लाइक अपलोड करने, तो फिर लैपटॉप से थोड़ी डिफिकल्टी होती है, टाइम क्यों? वेस्ट होगा थोड़ा। क्यों लैपटॉप से डिफिकल्टी क्यों होती है? जैसे क्लिक करके भेज, बेटा जो आपके पास मटेरियल है, आंसर है, उसको मेल करके लैपटॉप पे ले जाओ, या ब्लूटूथ से उधर ले जाओ लैपटॉप में भाई। बट टाइम कंज्यूमिंग ना होना। ओ बेटा कुछ टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, आपने फाइल बनाई अपने मोबाइल के ऊपर, ठीक है? तो उस फाइल को आप सेंड कर दो थ्रू मेल, आपकी ईमेल आईडी तो होगी आपके पास, उसको मेल करो, मेल को लैपटॉप पे खोलो, वहां पे डाउनलोड करो, उधर सेंड कर दो। पता क्या चक्कर है, आप लोग इन चीजों को ना बड़ी कम फ्रीक्वेंसी से करते हो, हमारा तो सारा दिन यही काम होता है, इधर से डाटा उधर, उधर से डाटा इधर, सो आप थोड़े यूज्ड टू हो जाओगे। देखो सिंपल सी बात है, दी बेस्ट आंसर इज दैट वी हैव टू वर्क विद ऑल द परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। मैं एक जगह पे फंस गया हूं, तो आई हैव टू लुक अपॉन दी अदर ऑप्शंस, ठीक है? आप इसका सोल्यूशन ये थोड़ी है कि मैं नया मोबाइल लेने चले जाऊंगा या मैं कुछ और करना शुरू कर दूंगा। लुक एट दी अदर ऑप्शंस, ठीक है? तो हमने ये देखना कि हमारे नियर बाय कोई और ऑप्शन अवेलेबल है। से वन मोर वेरी गुड ऑप्शन इज, आपके पास लैपटॉप है, आप टेस्ट ही लैपटॉप से दो उसको। और हम पता क्या करते हैं, आप लैपटॉप को 2 मेथड है, या तो ब्लूटूथ से ले जाओ, ब्लूटूथ में भी ज्यादा टाइम लगता है फाइल सेंड करने का, तो आप मेल कर दो उसको, और मेल को लैपटॉप पे खोल के उसको डाउनलोड करो, और फिर लैपटॉप से उसको अपलोड कर दो उसको, ठीक है? और इन दी एंड हमारे पास व्हाट्सएप वाला ऑप्शन तो है ही है, एंड टेक दी स्नैपशॉट इफ यू आर ए जेन्युइन कैंडिडेट, सो यू नीड नॉट टू वरी फॉर दैट, ठीक है? टीचर को भी पता होता है कि ऐसी डिफिकल्टी आ रही है, ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, थैंक्स बेटा। थैंक यू सर। Thank you, sir.